हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो एज ऑल ऑफ यू नो, एज ऑल माय व्यूअर्स नो, कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आई हैड अपलोडेड एन वीडियो ऑन सम बेसिक वर्ड्स व्हिच वी हैड टेकन इन प्लेस दैट वी विल नॉट बी यूजिंग दोज बेसिक वर्ड्स इन आवर डेली रूटीन, है ना। एंड आई हैव टॉट यू 12 advanced words. Okay, in this video also I've got 12 words which are basic, and again we will take a pledge that these 12 basic words will not be, we will not use these words. इनकी जगह एडवांस वर्ड्स लेंगे। ठीक है, एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें 12 शब्द ऐसे लेके आई थी जो बहुत बेसिक है, नाम ही बताता है बेसिक, तो वो हम नहीं यूज करेंगे, है ना। हम एडवांस वर्ड्स यूज करेंगे। Okay, the first word, I've written the words, basic words, then I've written the advanced words. Along with the basic words, I've also written in Hindi the meaning of these words, so that you, when you see the video, you immediately get an idea. ठीक है कि word क्या है? So the first word is show. SHOW, show. Show means दिखाना, है ना। इसका advanced word है demonstrate. How will you pronounce it? Demonstrate. Okay. Show your presentation, है ना। Show me the presentation that you have made. No, from now onwards you will not say show, you will say demonstrate me what you have got. Demonstrate your presentation, demonstrate your project work. आया समझ में? The second word is meet. MEET, meet, which means मिलना, है ना। When we talk to our friends, what do we say? Let's meet tomorrow. और I want to meet you, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. So just ignore this word, throw it somewhere, है ना, दिमाग से अपने निकाल दीजिए. Instead of me say, use this catch up. Let's catch up tomorrow. Let's catch up in the evening. One more thing I would like to mention over here is this catch up. You will not use this word catch up when you're talking to your seniors at your workplace. Okay, or if you are talking to your seniors at your workplace, even if you are a college student, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या वर्क प्लेस पे हैं, तो आप कैचअप का इस्तेमाल अपने कलीग्स, अपने साथ वालों के साथ ही करेंगे, सीनियर्स के साथ नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है। ओके, गलत नहीं है, इट्स अ लिटिल इनफॉर्मल एंड इट डजंट लुक गुड। ठीक है, कैचअप वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज सीक्रेट. SECRET. ओके, सीक्रेट मीन्स छुपाना, कोई ऐसा राज जो छुपा रखा हो. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल से अंडर रैप्स. ठीक है, शी इज हाइडिंग अ सीक्रेट. शी इज कीपिंग समथिंग अंडर रैप. ठीक है, शी इज कीपिंग समथिंग अंडर रैप. ठीक है, उसने कुछ छुपा रखा है. अंडर रैप का मतलब हुआ किसी चीज को रैप कर रखा है. दैट इज नॉट द लिटरल मीनिंग. The meaning behind the word under wraps is that some secret has been hidden. कोई secret किसी ने छुपा रखा है. ठीक है, जब बोलते हैं ना मम्मा इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस, बोलते हैं ना मम्मा कुछ छुपा रही हैं आज, तो मम्मा, व्हाट इज मम्मा डूइंग? मम्मा इज अंडर रैपिंग द थिंग. ठीक है, मम्मा इज कीपिंग something under wrap. Okay, next one is end. End मतलब अंत हो जाना, खत्म. Okay, from now onwards just put a cross on the word end and use the word culmination. How do we pronounce it? Culmination. CULMINATION. Culmination means end. किसी चीज का बेसिकली कल्मिनेशन वर्ड इस्तेमाल होता है कोई ऐसी चीज जो लंबे समय से चलती आ रही है. ओके, और उसका एक दिन अंत हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, if I say the trial that was going on for 5 years culminated today. जो मुकदमा कोर्ट में पिछले 5 साल से चल रहा था, it came to end today. It was culminated today. समझ में आया? ठीक है, culmination का. For example, let's take one more example. If I say his hard work of 5 months, 5 years, take 5 years. His hard work of 5 years, culminated when he got success. ठीक है, या his success culminated his 5-year long hard work. उसने जो 5 साल मेहनत करी, है ना, और जो उसको सक्सेस मिली, वो उसकी मेहनत, it got culminated. समझ में आया? Let me write this for you. Okay, his success, या his 5-month success culminated his hard work.
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, his success culminated his 5 months hard work. देखिए मैं एक वर्ड को किस तरह से कितने सेंटेंसेस में आपको समझाना चाह रही हूँ, समझा के बता रही हूँ, ठीक है, कि उसने पिछले 5 साल का काम किया, इधर मैंने लिखा है मंथ्स, 5 महीने का उसका हार्डवर्क था, उसकी सक्सेस ने इट कल्मिनेटेड इट. ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जस्ट delete this word end from your memory. Okay, next word is C, S-E-E-C. Now C is basically, I have written the advanced word of C is envision, but basically the thing is C normal होता है देखना, है ना, देखना. I see you, you see me, है ना, you are seeing me, आप मुझे देख रहे हो. But over here the word I have written envision is भविष्य देखना. अब भविष्य देखना ज्योतिषी वाला भविष्य नहीं. ओके, जैसे मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, है ना, तो मैं क्या इन्विजन करती हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले कुछ सालों में मेरी वीडियोस कहाँ जाएंगी. कहने का मतलब है वीडियोस लाइक होंगी, व्यूज बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम इन्विजनिंग. ठीक है, यू विल से आई एम इन्विजनिंग माई सेल्फ. ओके, एज वेयर विल आई गो आफ्टर 5 months या 5 years. ओके, of making these YouTube videos. एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे अभी रिसेंटली वी ऑल नो दैट प्रयागराज में कुंभ हुआ, है ना, 45 days का कुंभ था. सो इफ आई से द प्राइम मिनिस्टर हैड envisioned such a enormous event. ठीक है, एक कुंभ हुआ था और किसने envision किया था, प्राइम मिनिस्टर ने, है ना. तो क्या वर्ड आया, envision. उन्होंने देखा, उन्होंने लिटरली देखा नहीं, एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन हिज माइंड, उनके दिमाग में हो रहा था, ही वाज प्लानिंग. ठीक है, जैसे मैंने बताया भी मैं यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, तो आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ एज वेयर विल आई गो आफ्टर 2 years ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियोस. आया समझ में. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक. देखिए एक वर्ड को मैं बार बार बताती हूँ बिकॉज आई नो आपस में बातचीत नहीं हो सकती है. सो आई मेक माई बेस्ट टू, आई ट्राई टू पुट माई बेस्ट फुट फ्रंट. ओके, मैं चाहती हूँ मेरा अच्छी से अच्छा चीज़ जो मुझे आती है वो आप तक डिलीवर हो सके. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक. BREAK, ब्रेक, विच मीन्स टूटना, shatter. I love this word. I don't know why. Maybe it starts with the word Shah. My name is also Shah Shama. So this is shatter. The glass ceiling was shattered into pieces. Shattered मतलब टूट जाना. ठीक है, जरूरी नहीं कोई चीज टूट जाए तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं shatter का. इवन व्हेन यू आर इमोशनली डिस्टर्ब, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं एंड यू आर अफेक्टेड बाय समथिंग दैट हैज हैपेंड टू यू, कोई ऐसी चीज जिसने आपको इफेक्ट किया, देन दैट टाइम आल्सो यू से आई एम टोटली shattered. आई एम shattered, प्लीज डोंट टॉक टू मी. ठीक है, मैं बुरी तरह से टूट चुकी हूँ. लिटरली अब आप टूट नहीं सकते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग्स कांट break into pieces, but we do use this word shatter. Let me write it for you. I am shattered right now. Also, the glass was shattered into pieces. Okay, the next word is stop. रुकना, stop. Now the new word or the advanced word of stop is halt. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई ट्रेन है, उसका हम पहले बोलते हैं ना, यहाँ पे ट्रेन लखनऊ स्टेशन पे ये ट्रेन 2 मिनट रुकती है. द ट्रेन स्टॉप्स हियर एट दिस पर्टिकुलर स्टेशन ओनली फॉर 2 minutes. बट इफ आई से द ट्रेन हॉल्ट्स हियर. ओके, द ट्रेन हॉल्ट्स हियर फॉर 2 minutes ओनली. ठीक है, द ट्रेन हॉल्ट्स एट लखनऊ स्टेशन फॉर 2 minutes ओनली. ठीक है, स्टॉप की जगह हॉल्ट. या एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि द एक्सीडेंट हॉल्टेड द कम्यूटर्स, है ना, एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से सब ट्रैफिक जाम हो गया था. ठीक है, द एक्सीडेंट हॉल्टेड द ट्रैफिक. कहने का मतलब है कोई एक्सीडेंट हुआ, रोड क्लियर होने में टाइम लगा, इसलिए सारे जो लोग थे वो रुके हुए थे, मूवमेंट नहीं थी. ठीक है, सो द एक्सीडेंट हॉल्टेड द ट्रैफिक. स्टॉप नहीं यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज गो. गो, प्रोसीड. दिस इज इजी. गो नहीं बोलो, प्रोसीड बोलो. वेयर आर यू गोइंग नहीं, वेयर आर यू प्रोसीडिंग. ठीक है,
I'm proceeding towards my college. I'm proceeding towards my studio. I'm proceeding towards this. I'm proceeding towards that. Okay. Next one is find. F-I-N-D, find. Discover. This is easy, है ना? Don't say find. ठीक है? Discover. D-E-L-I-C-A-T, delicate. Delicate means जो जल्दी टूट जाए, है ना? Delicate मत बोलो. Say the word fragile. What is now fragile? F-R-A-G-I-L-E, जो चीज जल्दी से टूट जाए. For example, if I say so, please carefully wash the crockery as it is very fragile. Okay? Huh? Comfortable. Comfortable. See, pronunciation is also, it also plays a very keen role, while you want to ace in speaking English. अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से बात कर सको, अच्छे से सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़े आपका, then along with the meanings, along with everything, along with the grammar, you need to know the exact pronunciation of the words. अगर आपने एक भी वर्ड गलत बोला, then everything is ruined. Okay? So this is, मैंने सुना है comfortable, no, it's comfortable. Okay? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे. No hurries. Okay? Comfortable, that means आरामदायक. अब आप क्या वर्ड यूज करेंगे? Cozy. I like my cozy chair. I will not say I like comfortable. No, I will say I like my cozy bed or my cozy chair. The last word of this video is kind. K-I-N-D, kind, which means dayavan, है ना? The word, advanced word of kind is B-E-N-E-V-O-L-E-N-T. B-E-N-E-V-O-L-E-N-T. And how do we pronounce this word? We say it's benevolent. Okay? Kind. बोलते ना, please be kind to others. है ना? Please be kind to animals. No. Don't say kind to animals. Please be benevolent to animals. Please be benevolent to other people. Let's take one more example. Mother Teresa. Okay? अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हैं? Mother Teresa was a kind-hearted woman. Mother Teresa was a kind-hearted person who took care of poor and sick people. Mother Teresa, I hope सबको पता है ना? So from now onwards, what will we say? Mother Teresa was a benevolent person who took care of sick and poor people. So friends, this was all about the basic and advanced words. ठीक है, this is my second video, and just as the name says, basic, I'm actually bringing very basic words which we all use in our daily lives. मैं वाकई में ऐसे basic words लेके आ रही हूँ जो हम वाकई use करते हैं. You definitely say these words. आप definitely बोलते हैं, and just replace these words. Start using advanced words. Okay? Thank you for watching.